नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये जल्द ही अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बनने वाले हैं। इन्होंने अपनी हार मान ली है और अब वो बैकफुट पर आ चुके हैं। अपनी हार को बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कई प्रयास किए। वो कोर्ट के चक्कर लगाया, उनके जो समर्थक थे उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो खराब कर दी। इतना ही नहीं, बुधवार को डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक जो है उन्होंने जो अमेरिका का इतना पुराना लोकतंत्र है उस लोकतंत्र को भी धूमिल करने का काम किया। बुधवार को डोनाल्ड ट्रंप के जो समर्थक हैं वो कैपिटल हिल, जहां पर संसद है अमेरिका की, वहां पर घुस गए और वहां पर जाकर उन्होंने उत्पात मचाया। जो दफ्तर थे, दफ्तरों के पेपर को फेंक दिया। इस तरह से उन्होंने हरकतें की जो एक जाहिल, जिसे हम कहते हैं, वो करता है, क्योंकि अमेरिका एक डेवलप कंट्री है और उसकी बातें जो है पूरी दुनिया में कही जाती हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के ये जो समर्थक थे, इन लोगों ने जो हरकत की, इन हरकतों से अमेरिका को शर्मसार होना पड़ा है। और दुनिया के कई सारे नेताओं ने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने जो किया उसकी निंदा की है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। इस पूरी घटना के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर आए तो उन्होंने गुस्सा अपने समर्थकों पर ही निकाल दिया। क्या कहना था डोनाल्ड ट्रंप का, आप खुद ही सुनिए। I would like to begin by addressing the heinous attack on the United States Capitol. Like all Americans, I am outraged by the violence, lawlessness, and mayhem. I immediately deployed the National Guard and federal law enforcement to secure the building and expel the intruders. America is and must always be a nation of law and order. The demonstrators who infiltrated the Capitol have defiled the seat of American democracy. To those who engaged in the acts of violence and destruction, you do not represent our country. And to those who broke the law, you will pay. We have just been through an intense election and emotions are high, but now tempers must be cooled and calm restored. We must get on with the business of America. My campaign vigorously pursued every legal avenue to contest the election results. My only goal was to ensure the integrity of the vote. In so doing, I was fighting to defend American democracy. I continue to strongly believe that we must reform our election laws to verify the identity and eligibility of all voters and to ensure faith and confidence in all future elections. Now Congress has certified the results. A new administration will be inaugurated on January 20th. My focus now turns to ensuring a smooth, orderly, and seamless transition of power. This moment calls for healing and reconciliation. 2020 has been a challenging time for our people. A menacing pandemic has upended the lives of our citizens, isolated millions in their homes, damaged our economy, and claimed countless lives. Defeating this pandemic and rebuilding the greatest economy on earth will require all of us working together. It will require a renewed emphasis on the civic values of patriotism, faith, charity, community, and family. We must revitalize the sacred bonds of love and loyalty that bind us together as one national family. To the citizens of our country, serving as your president has been the honor of my lifetime. And to all of my wonderful supporters, I know you are disappointed, but I also want you to know that our incredible journey is only just beginning. Thank you, God bless you, and God bless America. आपको बता दें कि इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐसे बयान दिए गए थे जिसके वजह से ये जो समर्थक थे ये और भी ज्यादा उत्साहित हो गए और वो संसद में घुस गए। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की जो बेटी है इवांका, उन्होंने भी इन लोगों को जो है देशभक्त बता दिया। तो इस तरह से घटनाएं हुई हैं जो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। फेसबुक की अगर बात करें तो फेसबुक ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अब कार्रवाई कर दी है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के फेसबुक अकाउंट को 2 दिनों के लिए फेसबुक ने ब्लॉक किया था, लेकिन अब फेसबुक ने यह फैसला लिया है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो फेसबुक अकाउंट है वो आने वाले 2 हफ्ते तक पूरी तरह से बंद रहेगा।
मार्क जुकरबर्ग जो कि फाउंडर है फेसबुक के, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया और इस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि सिचुएशन को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप का ये जो फेसबुक अकाउंट है इसे 2 हफ्तों के लिए बंद किया जाता है। साथ ही साथ इंस्टा पर जो उनका अकाउंट है उसे भी बंद कर दिया जाता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब तक जो सत्ता का हस्तांतरण नहीं हो जाता है तब तक डोनाल्ड ट्रंप का जो अकाउंट है वो बंद रहेगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। हमारे देश में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो लोकतंत्र को ताक पर रखते हैं, लेकिन फेसबुक कभी कभी ऐसा लगता है कि उन पर कार्रवाई करने से डरता है। ऐसे 2 मामले हमारे सामने आ चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की ही खबर थी जिसके अंदर हैदराबाद के सांसद का जो कि बीजेपी के नेता है उनका एक भाषण जो है वो फेसबुक पे नहीं हटाया, क्योंकि फेसबुक को ऐसा लगता था कि ऐसा करने से हो सकता है कि फेसबुक का भारत में बिजनेस पर असर पड़ेगा। और कुछ दिनों पहले जो खबर आई थी वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसके अंदर बजरंग दल जो कि एक दक्षिणपंथी एक दल है उसके ऊपर कार्रवाई फेसबुक की तरफ से नहीं की गई, क्योंकि फेसबुक को डर था कि बजरंग दल के सदस्य जो है वो उनके एम्प्लॉयज पर हमला करेंगे। लेकिन अमेरिका में जो किया गया फेसबुक की तरफ से वो अपने आप में काबिल तारीफ है। हमें लगता है कि दुनिया के हर देश में जहाँ पर फेसबुक ऑपरेट होता है वहां पर अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर या फिर डेमोक्रेसी या फिर लोगों के खिलाफ जाता है तो उनके खिलाफ भी ऐसा ही स्टैंड लिया जाएगा। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।